ٹی وی چینل پر پہلی ویڈیو ترکی کی سیر بنائی گئی تھی، جس میں صرف 4 منٹ پر مشتمل معلومات بتائی گئی تھی۔ آج ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے ترکی کی ایک تفصیلی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، ترکی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ خطہ سب سے پہلے آباد ہونے والے خطوں میں سے ایک تھا۔ ترکی کا بیشتر حصہ اناطولیہ کے جزیرے نما پر آتا ہے۔ اناطولیہ کے اس جزیرے نما پر 7500 سال پرانی زندگی کے آثار بھی ملے ہیں، جنہیں یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں بھی شامل کیا گیا ہے۔ اگر ترکی کے اہم اور تاریخی ادوار کی بات کی جائے تو ترکی کو 334 قبل مسیح میں یونان کے سکندر نے فتح کر لیا تھا۔ سکندر کی وفات کے بعد اس کے جانشین اس کی سلطنت کو نہ سنبھال سکے اور یہ سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے بعد یونانیوں نے یہاں سلاویسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 63 عیسوی تک قائم رہ سکی۔ انہی کی حکومت کے درمیان میں کچھ عرصہ یہاں آرمینیوں نے بھی حکومت کی تھی۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہوئی۔ آپ کے اس دنیا سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد اللہ پاک نے رومیوں کو عروج دیا۔ انہوں نے پورا اناطولیہ حتیٰ کہ شام، مصر، اردن اور فلسطین پر بھی قبضہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد نے ترکی کو اپنا مسکن بنا لیا اور یہاں دعوت و تبلیغ کی سرگرمیاں جاری ہو گئیں۔ 300 عیسوی کے لگ بھگ اس پورے خطے نے مسیحیت کو اپنا لیا تھا اور 330 عیسوی میں رومی شہنشاہ قسطنطین نے مسیحیت قبول کر کے اسے سرکاری مذہب بنا دیا۔ یہی وہ بادشاہ تھا جس نے قسطنطنیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ اس سے پہلے اس شہر کا نام بازنطین ہوا کرتا تھا، مگر آج کل اس شہر کو استنبول کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ترکی کے بعض علاقوں میں رومی سلطنت 330 عیسوی سے لے کر 1453 عیسوی تک قائم رہی، مگر بعض علاقوں میں جن میں شام اور ترکی کے مشرقی حصے تھے انہیں مسلمانوں کی جانب سے فتح کر لیا گیا تھا۔ مشرقی اور وسطی اناطولیہ پر سلجوقی سلطنت قائم تھی، جبکہ مغرب میں رومی سلطنت قائم تھی۔ سلجوقی سلطنت کے زوال پر ان کی باقیات میں سے عثمانیوں نے جنم لیا اور یہاں عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وسطی ایشیا سے آئے مسلمانوں نے اس سلطنت کو وہ 4 چاند لگائے کہ اسے مسلمانوں کی سب سے بڑی سلطنت بنا دیا۔ سلطنت عثمانیہ کا صحیح دور 631 سال کا ہے۔ 16ویں اور 17ویں صدی میں عثمانی سلطنت دنیا کی سب سے طاقتور اور مضبوط ترین سلطنت تھی۔ اپنے زوال کے وقت سلطنت عثمانیہ نے پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا ساتھ دیا۔ جرمنی کی ناکامی کے بعد معاہدہ سیورے کیا گیا، جس کی ترکوں نے خوب مخالفت کی۔ فتح پانے والے ممالک نے اس سلطنت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہوئے اس سلطنت پر قابض ہونے لگے۔ 9 مئی 1919 کو ترکوں نے عسکری کمانڈار مصطفیٰ کمال پاشا کی قیادت میں جنگ آزادی کا اعلان کر دیا۔ 18 ستمبر 1922 کو ترکوں نے تمام فوجیوں کو ترکی سے نکال دیا تھا۔ 1 نومبر 1922 کو ترک پارلیمان نے خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ یوں مسلمانوں کی 631 سالہ عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ 24 جولائی 1923 کو معاہدہ لوزان کیا گیا۔ یہ وہی معاہدہ تھا جس نے ترکی کو باندھ کر رکھ دیا تھا۔ یہ مغربی ممالک کی مسلمانوں کے خلاف ایک سازش تھی جو کامیاب ہو گئی۔ اس معاہدے میں ترکی پر 100 سالوں کے لیے پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ ان پابندیوں میں ترکی اپنی طے شدہ حدود کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا تھا۔ اس معاہدے میں سلطنت کا خاتمہ اور سلطان کو اپنے عزیزوں کے ساتھ جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ خلافت کی مکمل املاک اور سلطان کی سبھی املاک ضبط کر لی گئی تھیں۔ ترکی کو 100 سالوں کے لیے پٹرول کے لیے اپنے ملک یا کسی دوسرے ملک میں ڈرلنگ کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، یعنی 100 سالوں کے لیے ترکی پیٹرول امپورٹ کرنے کا پابند بنا دیا گیا تھا۔ ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ بناتے ہوئے اسلام اور خلافت سے اس کے تعلق پر قدغن لگا دی گئی۔ باسفورس کو عالمی سمندر کا حصہ بنا دیا اور یہاں سے گزرنے والے کسی بھی بیڑے سے ترکی ٹیکس وصول نہ کر سکے گا۔ یہ اس معاہدے کی اہم شرائط تھی۔
इस मुआहदे पर दस्तखत स्विट्जरलैंड में लौज़ान के मुकाम पर हुए थे, इसीलिए इस मुआहदे को मुआहदा लौज़ान के नाम से पुकारा जाता है। इस मुआहदे के बाद 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की को आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से सारी दुनिया ने कबूल कर लिया और यही दिन तुर्की का कौमी दिन कहलाया जाने लगा। मुस्तफा कमाल पाशा, जिन्हें बाद में अतातुर्क का खिताब मिला, जिसके मानी है तुर्कों का बाप, इस बंदे ने तुर्की को बरतानिया, फ्रांस और दीगर इन ममालिक के कब्जे में जाने से रोका था। दूसरी जंग अजीम में तुर्की तकरीबन गैर जानिबदार रहा, लेकिन जंग अजीम दोम के बाद में होने वाली अमेरिका और सोवियत यूनियन की सर्द जंग में तुर्की ने अमेरिका और इसके हामियों का साथ दिया, जिसके बदले में तुर्की की इमदाद की जाती रही। जुलाई 1974 में कब्रस में तुर्क मुसलमानों पर मसीही आबादी की जानिब से मुजालम शुरू हो गए, जिसके नतीजे में तुर्क जमहूरिया शुमाली कब्रस कायम हुई, जिसे अब तक तुर्की के अलावा दुनिया के किसी मुल्क ने नहीं माना है। जबकि जनूबी कब्रस, जिसे जमहूरिया कब्रस का नाम दिया गया क्योंकि ये एक मसीही आबादी वाला हिस्सा था, इसे आज़ाद होने के अलावा यूरोपीय यूनियन की रुकनीत भी हासिल हो चुकी है। तुर्की में एक ऐसा वक्त आ गया था कि तुर्किश लोग तुर्की को यूरोप बनाने के हक में उठ खड़े हुए थे। तुर्की में हिजाब करने तक पाबंदी लगा दी गई थी, जो कि सब मगरबी साजिशों का नतीजा था। 1992 में इस्तांबुल के नाज़िम बनने वाले रजब तैयब उर्दगान अवाम में इस कदर मकबूल हुए कि उन्होंने 2002 में अपनी हुकूमत इश्तराक से कायम करने की कोशिश की, मगर उन्हें 1998 में इस्लाम और मुसलमानों के हक में तकरीर करने के जुर्म में वजीर आज़म बनने से रोक दिया गया। इसके बाद उनके नायब अब्दुल्ला गुल को वजीर आज़म बनाया गया। ताहम इसी हुकूमत में आइन में तब्दीली करके उनकी सज़ा को ख़त्म कर दिया गया और अब्दुल्ला गुल ने वजारत उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दिया और तैयब उर्दगान मुल्क के नए वजीर आज़म मुंतखब हुए। नवंबर 2007 में होने वाले इलेक्शन में इस पार्टी ने अक्सरियत से अपनी हुकूमत कायम की और 2014 से तैयब उर्दगान तुर्की के 12वें सदर की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया, रजब तैयब उर्दगान और तुर्की का 2023 में ख़त्म होने वाला मुआहदा लौज़ान, जिसके बाद तुर्की चाहे तो दोबारा सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रख सकता है। ये सब मालूमाती वीडियोस आपको हमारे चैनल दिलचस्प मालूमात पर कुछ ही दिनों में वीडियोस की सूरत में मिलेंगी। इस चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां मौजूद सैर व तफरीही और मालूमाती वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, तुर्की 2 बरे-आज़मों एशिया और यूरोप में वाक़ है। इस मुल्क का 3% हिस्सा यूरोप जबकि 97% हिस्सा मगरबी एशिया में आता है। तुर्की का कुल रकबा 7,83,356 मरबा किलोमीटर है। ये मुल्क अपने रकबे के एतबार से दुनिया का 36वां बड़ा मुल्क है। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की की आबादी 8,08,10,525 अफराद थी, जो इसे दुनिया का 19वां बड़ा मुल्क बनाती है। अंकारा तुर्की का दारुल हुकूमत है, लेकिन इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा और कारोबारी शहर है। इस शहर को तारीख में कुस्तुनतुनिया के नाम से भी याद किया जाता है। तुर्की के कुल 81 सूबे हैं, जिनमें सूबा इस्तांबुल, सूबा अंकारा, सूबा अजमेर, सूबा बोरसा, सूबा कोनिया, सूबा अदाना और सूबा उर्दू मशहूर हैं, जिनको गैर मुल्की अच्छी तरह जानते हैं। तुर्की के 12 ऐसे शहर हैं जिनकी आबादी 5 लाख अफराद से ज्यादा है, जबकि 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की तादाद 48 के करीब है। तुर्की की करेंसी को तुर्किश लीरा कहा जाता है। इनका 1 लीरा पाकिस्तान के 28.89 रुपयों के बराबर है, जबकि ये 1 लीरा इंडिया के 16.28 रुपयों के बराबर है। तुर्की का कॉलिंग कोड +90 और डोमेन नेम .tr है। दोस्तों, तुर्की पाकिस्तान से 3,330 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। वक्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है। दोस्तों, तुर्की की मजमूई आमदनी $2.249 ट्रिलियन है, जो इसे मईशत के हवाले से दुनिया भर में 13वें नंबर पर लाती है, जबकि तुर्की में फीकस मजमूई आमदनी $27,634 है, जो इसे दुनिया में 45वें नंबर पर लाती है। इस्लाम तुर्की का सबसे बड़ा मजहब है, जिसे मुल्की आबादी का 82% लोग मानते हैं।
2% लोग मसीहत के मानने वाले, 7% ऐसे हैं जिनका कोई भी मजहब नहीं। 2% दीगर मज़ाहब के मानने वालों के अलावा बाकी आबादी का अभी तक मजहब वाज़े नहीं किया गया है। दोस्तों, तुर्की दूसरा मुल्क है जिसने 1963 में यूरोपीय इत्तेहाद बनाने से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। 1987 में तुर्की ने यूरोपीय यूनियन का रुकन बनने की दरख्वास्त की थी, जिसे 1989 में ये कहकर मुस्तरद कर दिया गया था कि तुर्की में अभी मजीद सियासी और इक्तसादी इस्लाहात की ज़रूरत है। यूरोपीय यूनियन ने अक्टूबर 2005 में तुर्की को यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनने का उम्मीदवार करार दिया था। तुर्की की 18.2% आबादी ज़राअत के पेशे से वाबस्ता है, 26.8% इंडस्ट्री से वाबस्ता है, जबकि 55% आबादी सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मुलाजमत अख्तियार किए हुए है। टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोज, इलेक्ट्रॉनिक्स, टूरिज्म, माइनिंग इंडस्ट्री, स्टील और कंस्ट्रक्शन तुर्की की माइशत को दिन दुगनी रात चुगनी देने वाली इंडस्ट्रीज हैं। तुर्की ने सियाहत को अपने मुल्क में लाने के लिए बहुत सी इस्लाहात की हैं। ये तैयब रजब उर्दगान की पॉलिसियों का ही नतीजा है कि जो हर साल करोड़ों अफराद तुर्की का सफ़र कर रहे हैं। तुर्की में 2017 में 3 करोड़ 20 लाख गैर मुल्कियों ने सफ़र किया था, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तुर्की को कितना फ़ायदा हुआ होगा। तुर्की के शहर इस्तांबुल में 1455 ईस्वी को सल्तनत उस्मानिया के दौर में ग्रैंड बाजार की बुनियाद रखी गई थी। तब इसका नाम तो कुछ और था, मगर आज इस बाजार को इसी नाम से दुनिया में मकबूलियत हासिल है। इस बाजार की 64 गलियां हैं, 4000 से ज़ायद यहाँ दुकानें बनाई गई हैं और 25,000 से ज़्यादा वर्कर यहाँ काम कर रहे हैं। इस्तांबुल में पिछले 3-4 सालों से आने वाले सियाहों की तादाद हर साल 3 करोड़ से ज़ायद नोट की जाती है। इन 3 करोड़ में से 1 करोड़ अफराद हर साल इस बाजार का सफ़र लाजमी करते हैं। अरारात के पहाड़ तुर्की के सबसे बुलंद पहाड़ हैं। ये वही पहाड़ हैं जहां हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं। बहरा अस्वद की तह में इंसानी आबादी के आसार भी दरियाफ्त हुए हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आज से हज़ारों साल पहले यहाँ भी दुनिया आबाद थी। तारीखी तहकीकात से मालूम होता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तूफान का ज़माना भी यही हो सकता है। इसी तूफान से बहरा अस्वद की सतह बुलंद हुई। बहरहाल जो भी हो, खुदा बेहतर जानता है। तुर्की में 130 ऐसी पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई 3000 मीटर से ज्यादा है। जिंदगी में अगर आपको कोई कौम अपने मुल्क से प्यार करती नजर आए तो वो तुर्किश कौम होगी, जो अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार अपनी इमारतों पर कौमी परचम लहरा कर करते हैं। तुर्की में शायद ही कोई ऐसी इमारत होगी जहां आपको तुर्की का परचम नजर नहीं आएगा। फेसबुक की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस और यूके के बाद तुर्की में सबसे ज्यादा फेसबुक यूजर पाए गए हैं, यानी फेसबुक यूजर के हवाले से तुर्की दुनिया भर में तीसरे नंबर पर आता है। दोस्तों, तुर्की का लफ्ज इटालियन जुबान के लफ्ज तुर्किया से लिया गया है। इटालियन जुबान में तुर्किया अनातोलिया को कहा जाता है। दोस्तों, तुर्की का शहर इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बरे-आज़मों पर फैला हुआ है। इस शहर का 3% हिस्सा यूरोप जबकि 97% एशिया में आता है। तुर्की को जंग अजीम ओवल के फातहीन से आज़ादी दिलवाने वाला मुस्तफ़ा कमाल पाशा ही वो शख्स था जिसने शराब पर लगाई गई इस्लामी सल्तनत की पाबंदी को ख़त्म कर दिया था। इस्लामी कैलेंडर को ख़त्म करते हुए मुल्क में ईसवी कैलेंडर का इस्तेमाल करवाया। जुमा की तातील को ख़त्म करते हुए अतवार को छुट्टी का दिन करार दिया। तुर्किश अल्फ़ाबेट को अरबी से रोमन ज़ुबान में तब्दील करवाया। हत्ता कि अजान की आवाज़ भी अरबी की बजाय तुर्किश ज़ुबान में सुनाई दी जाने लगी थी। इस शख्स ने तुर्की में इस्लामी सल्तनत की निशानी यानी तुर्किश रेड फेज हैट पर भी पाबंदी लगा दी थी। तुर्की अपनी मसाजिद के हवाले से दुनिया भर में अपना एक अलग मुकाम रखता है। मुस्लिम ममालिक से हर साल लाखों की तादाद में सियाह इन मसाजिद को देखने की गर्ज से आते हैं। तुर्की में कायम मसाजिद की तादाद 83,000 के करीब है, जो पर कैपिटा के हवाले से दुनिया में सबसे ज्यादा है। तुर्की के सूबे अनातालिया में वाक़े अनातालिया शहर दुनिया का वो शहर है जिसके साफ शफाफ पानियों और साफ शफाफ बीचेस की बदौलत इसे ब्लू फ्लैग से नवाजा गया है।
اس شہر کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ بلیو فلیگ حاصل کرنے کا ریکارڈ ہے، جو آج تک کوئی بھی توڑ نہ سکا۔ حذیفر احمد چلیبی دنیا کا وہ پہلا شخص تھا جس نے 17ویں صدی میں اپنے دونوں بازوؤں پر پروں کو باندھ کر ہوا میں اڑنے کی کوشش کی تھی۔ اس شخص کا تعلق بھی ترکی سے ہی تھا۔ ہوائی جہاز کی تخلیق کا سہرا تو مسلمانوں کے سر جاتا ہے، مگر اس کو 20ویں صدی میں رائٹ برادرز نے تشکیل دیا تھا۔ دوستو، ترکی دنیا کے 1/4 پھول پیدا کرتا ہے۔ دوستو، ترکی کی آبادی میں 70 سے 75% اناطولین ترک لوگ ہیں، 18% کے قریب کرد لوگ اور 7 سے 12% دوسرے قبیلوں کے لوگ ہیں۔ آئل ریسلنگ ترکی کا قومی اور مقبول ترین کھیل ہے۔ یہ کھیل ترکی میں بہت شوق سے کھیلا اور دیکھا جاتا ہے۔ اس کھیل کے علاوہ ترکی میں کھیلے جانے والے مشہور کھیل فٹ بال، باسکٹ بال، ہینڈ بال، بیچ ہینڈ بال، فشنگ، فلائنگ، رگبی یونین، ویٹ لفٹنگ اور ریسلنگ ہیں۔ دوستو، یہ تھی ترکی کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک خوبصورت سی ویڈیو۔ اس ویڈیو میں نے بہت سی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد اس ویڈیو کا دوسرا حصہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافے کی وجہ بنی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیز و احباب کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنے پسندیدگی کا اظہار کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور کومنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنے اس دوست کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔